Hey guys, this is Devon Sayed from Mr. and Mrs. Dubinian. Today, new day, new restaurant, new hairstyle. I'm sure you guys have noticed this. तो आज हम आए हैं a very unique, a very different cuisine, a very different restaurant. जिसका नाम है Peshwa, a Pune, a Maharashtrian restaurant, and I don't find any authentic Maharashtrian cuisine in UAE, especially Dubai में. कुछ है लेकिन खास नहीं है. I mean, I was living in India also. जैसे father का business था बॉम्बे में. हम लोग फूड पे रहते थे. So I have tasted a lot of Maharashtrian cuisine, but कुछ खास यहाँ पे रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे authentic खाना मिलता है. So let's see what these guys are offering and let's see how it actually tastes like. Different cuisine, different food, different माहौल, different जगह पे आज आपको मैं लेके आया हूँ. Let's go inside without wasting any further time. Let's just go inside and let's see what are the unique dishes which these guys are offering. Come with me. So guys, this food which I have right now in front of me, it's typical Maharashtrian cuisine और ये पुणे का restaurant है. I mean, the owners are from Pune. They are Pune based and husband and wife का business है. They started in 2012. They have started this business and a lot of Maharashtrians and lot of especially from Pune and Kanpur and Nagpur और जितने ये सब पूर है महाराष्ट्र में जो जगह हैं जो इलाके हैं वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं. Not just them, actually I've seen a lot of North Indians, South Indians, a lot of people from Hyderabad, a lot of people from all over the place actually. It's not just the Indian who are coming to the restaurant, there are a lot of non-Indians who are also coming to the restaurant. और इसमें से इतनी खुशबू आ रही है, I can't really express and I can't really tell you कितनी अच्छी खुशबू आ रही है. Without wasting any further time, let's just jump into the food because I'm so starving. I'm really hungry actually. इतनी अच्छी खुशबू इसके अंदर से आ रही है तो I can't control myself. So I'm gonna start with the starter. This is called कोतंबीर वड़ी और इसको कोरिएंडर में और बेसन में मिक्स करके बनाया जाता है और इसको फ्राई करा जाता है. आपको पीछे से महाराष्ट्रन ऑल्सो गाने सुने आ रहे होंगे क्योंकि ये रेस्टोरेंट टिपिकल महाराष्ट्रन है और आपको हर चीज़ मतलब द वर्कर्स आर स्पीकिंग इन मराठी. काफ़ी सारे कस्टमर्स भी महाराष्ट्र के ही है. सो कोतंबीर वड़ी को खा के शुरू करते हैं. एंड आई थिंक देयर इज़ अ स्मॉल मुरब्बा चटनी जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा तीखा मीठा होता है. खा के देखते हैं. कोतंबीर वड़ी पहली डिश, पहला आइटम, पहला निवाला. एंड व्हाट आर वी सपोज्ड टू से बिफोर वी ईट? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. वाओ, कोतंबीर वड़ी थोड़ा सा स्पाइसी किक है इसके अंदर एंड आई रियली लव इट एक्चुअली. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. दिस इज काइंड लाइक अ पकोड़ा बट अ डिफरेंट वर्जन, अ डिफरेंट काइंड ऑफ पकोड़ा. समथिंग वेरी यूनिक. आई हैव नेवर टेस्टेड एक्चुअली समथिंग लाइक दिस बिफोर. बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड दिस चटनी इज अ किलर. चटनी के साथ खा के इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. I'm loving it. Quite refreshing, quite tasty. Typical Maharashtrian cuisine. Typical Maharashtrian cuisine. After the starter was really good. अब जंप करते हैं the main course, the main dish और ये है कोलंबी थाली. कोलंबी थाली का मतलब होता है it's a prawns थाली. Typically इसमें prawns देखिए, you can see this crispy prawns here. This roti is not any other roti. It's a very unique roti जो कि मैंने literally I have never tasted rice roti. It's a rice chapati. Rice chapati. देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है जो राइस चपाती का. आई हैव नेवर टेस्टेड द राइस चपाती एंड आई थिंक आई एम सपोज टू ईट विद दिस ग्रेवी. जैसे हर एनी अदर थाली होती है बट दिस इज अ प्रॉन्स थाली. कोलंबी. लेट्स टेक द फूड नाउ. This is very unique. It's very spicy. Flavors, the aroma, the zaika. I mean overall it's the best I can say. So I'm not sure क्योंकि मैं कभी पुणे का खाना खाया नहीं so I'm not sure this is the authentic one or not but I'm loving it. Whatever it is I am loving it. इतना अच्छा है. The prawns, the gravy of that prawns with this rice chapati of man, the combination of these two man, it's a killer. Spices से भरा पड़ा है, मसालों से भरा पड़ा है and the gravy जो नीचे गिर रही है देखो ग्रेवी मेरे हाथ से lovely है man. This look like a fried crispy prawns
जिसको फ्राई किया गया है, इसको देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। ओफो यार, एक से एक खाने हैं यार अपने पास दुनिया भर में, माशाल्लाह। आई थिंक इट्स क्वाइट इनफ। दिस वन थाली इज वेरी क्यूट एंड छोटी सी है, बट क्वाइट इनफ फॉर वन पर्सन। एंड आई हैव चेक्ड द मेन्यू rates, the prices. It's not too expensive. It's very budget friendly. I'm not going to tell you the prices because so the reason I don't tell the prices of the food is कुछ टाइम के बाद प्राइस चेंज हो जाता है। अगर आप वो टाइम पे फिर बाद में कुछ 6 महीनों के बाद जाएंगे एंड द प्राइस डिफर्स, फिर आप मुझे बोलेंगे भाई जिमरान आपने बताया था 25 dirham का है, 30 dirham का, लेकिन वहाँ पे जाके पता चला 50 dirham का है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेट्स ट्राई द डिफरेंट वन। ये थोड़ा सा डिफरेंट ग्रेवी है, लेकिन ओवरऑल हर चीज़ इसको प्रॉन्स में ही बनाएगी। ये वाली जो थाली है इसको इसलिए टिपिकल इसका नाम दिया गया है प्रॉन्स का, क्योंकि हर चीज़, हर छोटा आइटम इसमें प्रॉन्स है। हाँ अलबत्ता स्वीट में नहीं है तो गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में तो प्रॉन्स नहीं डाल सकते, अच्छा नहीं लगेगा। बट बना के एक बार देखते हैं, गुलाब जामुन प्रॉन्स वाला गुलाब जामुन देखते हैं, बस टेस्ट करते हैं। ये वाला ग्रेवी थोड़ा सा सोंधा सा था, नॉट टू स्पाइसी लाइक द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन वाज लिटिल बिट स्पाइसी बट फुल ऑफ फ्लेवर्स। ये वाला फुल ऑफ फ्लेवर्स और लेस स्पाइसी वन। लव इट, लवली टेस्ट। और ये मेरा फेवरेट है, इसे झींगा कहते हैं, झींगा मतलब प्रॉन्स कहते हैं। इसमें से खुशबू जो आती है वो उन खानदान को बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये भी छोटा प्रॉन्स है, छोटा झींगा, झींगा जैसे कहते हैं। आय हाय, सूरत से तो बहुत अच्छा है, सीरत देखते हैं कि कैसी है। बहुत स्ट्रॉन्ग झींगे वाला टेस्ट है। जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ना, उन लोग का झींगा बहुत बड़ा फेवरेट होता है, एंड दे नो वेरी वेल कि झींगा का टेस्ट कैसा होना चाहिए। द पीपल हु डजंट नो, वो थोड़ा झींगे की स्मेल से थोड़ा सा दूर भागते हैं। मुझे पसंद है क्योंकि मैं तो बॉम्बे में था, क्योंकि बॉम्बे के खाने बहुत सारे हमने खाए हैं और दुबई में भी झींगा बहुत ज़्यादा कॉमन है। दिस वन इज गुड, टेस्ट बहुत अच्छा है, इसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ हर किसी के लिए आके ट्राई करने के लिए। दिस टिपिकल थाली एक्चुअली आई कैन रिकमेंड एनीवन टू कम एंड ट्राई। ये पिंकिश सा पता नहीं क्या है मुझे इसका नाम, लेकिन उन्होंने दिया गया है सोल कड़ी, इसका नाम बताया है मुझे सोल कड़ी। और आई थिंक ये कोकोनट, बिकॉज में थोड़ी सी कोकोनट की स्मेल आई है, तो थोड़ा सा इसको पी के देखते हैं टेस्ट कैसा है। ओफ वो गाइस, हाय दिस इज वेरी यूनिक यार। आई कांट इवन डिस्क्राइब एक्चुअली, आई कांट इवन एक्सप्लेन टू यू कि कैसा टेस्ट था इसका। वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, जैसे कि छाछ होती है ना, छाछ टाइप। और जैसे हम लोग ठंडियों में पीते हैं, क्या बोलते हैं, छाछ ही बोलते हैं ना उसको, जो दही की लवन टाइप होती है लेकिन पतला सा है। एंड ये यहाँ जाके लगा, जो स्पाइस था ना इसका वो यहाँ जाके लगा। सो जस्ट इमेजिन कि कैसा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत उम्दा है। उसके ऊपर से कोरिएंडर लीव्स डाले गए तो उसका थोड़ा सा वो रिफ्रेशिंग वाला टेस्ट आ रहा है इसके साथ। आई बिलीव दिस इज समथिंग वेरी यूनिक बिकॉज दे डोंट मेक दिस हियर। और साउजी मैंने खाया था नागपुर में, थोड़ा सा साउजी टाइम लग रहा है, लेकिन साउजी नहीं है, दिस इज कॉल्ड काला मटन। टेस्ट मुझे पता नहीं कैसा है, अंदर क्या क्या डाला गया है इसके अंदर, लेकिन खा के मैं बताता हूँ कि इसके अंदर मसाले क्या है और कैसा टेस्ट है। You don't get this here in UAE, especially in Dubai. You don't get this here. It's not very common. काले मटन के साथ they have served जवार की रोटी। जवार की रोटी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिल रही है जवार की रोटी। देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। और पहला लुकमा ले रहा हूँ मैं, बिस्मिल्लाह, ऊपर वाले को याद करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। The mutton got so tender. अंदर डालते घुल गया वो, इतना सॉफ्ट है मटन। The zaikas, I think there is the green masala, the hara masala, all the masalas, जो गरम मसाला जिसको बोलते हैं, गरम मसाला है इसके अंदर, and lots of pepper है, salt है। इसको मेरे ख्याल से भूना गया है, काफ़ी देर तक उसको भूना गया है इसके बाद आया ये भूनने के बाद। बहुत ही उम्दा और बहुत ही यूनिक चीज़ मैं एक्चुअली आज खाई है। और इसको जब मैं बाजरे की रोटी के साथ खा रहा हूँ तो बाजरा और ये चीज़ मिलके थोड़ा सा अलग ही हो गई है, मुझे बहुत पसंद आया यार। ये काफ़ी डिफरेंट है, एकदम देसी। और जो चीज़ कॉमन नहीं है मैं आपको आज वो बता रहा हूँ। दिस थिंग इज़ नॉट कॉमन। दुबई में यहाँ पे बिल्कुल मिलता ही नहीं है ये चीज़। मैं तो पहली बार खा रहा हूँ इसको, ज़बरदस्त है, इतना अच्छा है कि मेरा 100% रिकमेंडेशन है, आपके ट्राई करना चाहिए। You don't have to be a Maharashtrian, you don't have to be an Indian, you don't have to be a Pakistani, you don't have to be a Desi. I think anyone can come and try this food.
मेरे हिसाब से तो अरब्स भी आगे खा सकते हैं, कुछ चीज़ है थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा स्पाइसी होगा, बट आई थिंक एनीवन कैन कम एंड ट्राई द फूड हियर। This gravy and this chicken is really tempting. मम्मी बहुत टेस्टी है, जायकेदार है, लज़्ज़तदार है। लिज्जत पापड़ नहीं है, सॉरी, लज़्ज़तदार लिज्जत पापड़। चिकन बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है। कम एंड ट्राई दिस वन ऑल्सो। दे हैव वैराइटीज़ ऑफ डिजर्ट्स, और मीठे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। अब इसका नाम है पूरन पुली। पूरन पुली ये रोटी होती है, प्योर आटे की रोटी है, और इसके ऊपर मेरे ख्याल से लग तो रहा है असली घी इसके ऊपर डाला गया है। हमने बस खीर पूरी बनती है वैसी टाइप की थोड़ी सी इसकी से खुशबू आ रही है। देखते हैं कैसा टेस्ट है। हाँ, आई वाज राइट, इसके ऊपर असली घी डाला गया है और अंदर वो हलवा है। और इसको अगर बहुत ज़्यादा गरम खाएंगे ना तो जब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा गरम है लेकिन कुनकुना गरम है। असली घी दिल खोल कर डाला गया है, और असली घी का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। आई लव इट। देखो अंदर देखो कैसा है। दिस इज कॉल्ड हलवा, दिस इज दी हलवा। ये अंदर इसके हलवा है, जो मिठास आ रही है ना इसकी तरफ से आ रही है, और ये रोटी है इसके ऊपर। आई एम लविंग इट। आई एम एक्चुअली लविंग दी महाराष्ट्रन कुजीन। मैंने बहुत कम जगहों पे एक्चुअली बहुत कम बार मैंने महाराष्ट्रन कुजीन खाई है, लेकिन दिस प्लेस इज समथिंग वेयर आई शुड कम बैक अगेन, यू नो, इतना अच्छा। अब आ गई है बारी मेरे फेवरेट, सबसे फेवरेट चीज़ों की, जो मैं हर फूड रिव्यू में लास्ट में आता है। मैं सोचता हूँ कि यार पहले इसको सर्व करना चाहिए, लेकिन या तरीका यही है कि तीखे के बाद फिर कुछ मीठा हो जाए। तो मीठा पहले, कल्चर नहीं है मीठा पहले नहीं खाते, लेकिन मैं उन लोगों में से मैं कभी कभी पहले मीठा खा लेता हूँ, उसके बाद फिर बाद में तीखा खाता हूँ। अब मेरे सामने है, इसका नाम है दूधी। दूधी का ये हलवा है, दूधी का ये मीठा है, कद्दू का हलवा है। इसको खा के देखते हैं। मेरे ख्याल से इसके ओहो है, क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खोआ डाला गया है अंदर, आई कैन से काफ़ी ज़्यादा खोआ डाला गया, इसलिए इसके अंदर से तीखी खुशबू आ रही है। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम मैंने इतना अच्छा, इतना टेस्टी और इतना ऑथेंटिक कद्दू का हलवा मैंने नहीं खाया, बहुत टाइम से नहीं खाया था। बट दिस इज समथिंग which I will advise and I can recommend every one of you to come and try this। जो लौकी के या कद्दू के हलवे के जो शौकीन हैं उन लोगों को मैं एडवाइस कर सकता हूँ कि आगे खाने के लिए। I think I'm gonna finish this the entire one। I don't think I can share the with the person who is behind the camera. He's looking at me, but I won't be sharing this with him। I mean we can order more, but this is that tasty, इतना अच्छा है। Lovely, अल्टीमेट, एकदम किडर है बापू, मस्त है एकदम, बिड़ू मस्त है। इसका नाम है श्रीखंड। ओए होए, ओह इट्स लाइक अ क्रीम। मैंने सोचा ऊपर इसके क्रीम है और अंदर शायद कुछ सॉलिड होगा, लेकिन देखते हैं, खा के देखते हैं कैसा है। ओफो, वाओ, ज़ाफ़रान का थोड़ा सा टेस्ट आ रहा है इसके अंदर से, एंड इट्स काइंड लाइक अ स्वीट लबन, यू नो। दो इतना मज़े का है यार ये। ओफो, क्रीमिश है, बहुत क्रीमिश है। It's gonna fall now. It is so creamish। ज़ाफ़रान और इसके अंदर बादाम पिस्ता है, या पिस्ता है, बादाम है। I mean जो टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में, और इलायची का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है, इलायची वाला फ्लेवर है। It's like a yogurt, it's like a लबन जो होता है ना, जो स्वीट लबन जो हमें मिलता है ना, स्वीट लबन के जो बॉक्सेस मिलते हैं अपने पास अलमराई के या अलग अलग ब्रांड्स के, थोड़ा सा उस टाइप का टेस्ट है, बट वेरी वेरी यूनिक और बहुत ज़्यादा उमदा, उनसे लाख गुना अच्छा है। ओहो, आई विल कम बैक टू दिस प्लेस ओनली फॉर दिस वन। ओहो, ये मुझे याद आ रहा है जब हम बॉम्बे से आ रहे थे, गोवा गए थे, तो बॉम्बे की तरफ जा रहे थे वापस, तो मुझे रास्ते में हमने इसको ब्रेड पे लगा के इसको एज ए ब्रेड जाम टाइप खाया था। ये वो है, बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द लास्ट डिजर्ट, और इसका नाम है बासिंदे। बासिंदे कैसे एक्सप्लेन करूँ, ये दूध है जिसको बहुत ज़्यादा बॉईल किया जाता है काफ़ी देर तक, थोड़ी सी इसको काइंड लाइक रबड़ी, एक्चुअली रबड़ी टाइप बना देते हैं। देखते हैं कैसा टेस्ट इसका। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस, वाओ वाओ, आई मीन जस्ट वाओ। रबड़ी बोल के एक्चुअली इस चीज़ की तौहीन
लिटरली तौहीन मैंने कर दी। आई एम सॉरी बासिंदे, आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी टू दिस रेस्टोरेंट। मैंने इसको रबड़ी का नाम दिया। दिस इज़ फार 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 बेटर देन द रबड़ी। इतना ज़्यादा थिक है जो दूध को गरम करके और उसको बहुत देर तक उसको जला के आई कांट इवन एक्सप्लेन, मैं समझा नहीं सक रहा हूँ। लुक एट माय फेस मैन, आई एम so freaking happy to have this thing man. This one I'm literally sure I will be coming back for this one for sure. And I'm advising all of you to come and try this one. I mean, the entire cuisine, the entire thing which I had it today was very unique, very different than the restaurants or the food which I usually go there. उनसे काफ़ी ज़्यादा different था, काफ़ी ज़्यादा हटके था. I'm rating the service, the interior, the food, this cuisine, the Maharashtrian, the Pune cuisine. I'm rating 4.7. 4.7. The taste was so authentic. The food was so tasty. It was flavorful. It was very tempting, and it got everything actually here. The price is not much. It is very budget friendly. काफ़ी ज़्यादा सस्ता है मेरे हिसाब से खाना. और this typical thali, this thali, you don't have to have anything else. I think this thali is more than sufficient. उसके अंदर क्योंकि मीठा भी आ गया, तीखा भी आ गया, नमकीन भी है, खारा भी है, पापड़ भी है, रोटी भी है. Lovely. 4.7 to Peshwa. Come and try the food. So I'm sure you guys have loved today's video because I have thoroughly loved the food. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है. So if you have liked it, don't forget to like, share and subscribe to the channel because it actually motivates me to try more and more and more food. मोटा नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में खाना खाया मैंने लेकिन मोटा नहीं हो रहा हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है आप लोगों की और ऊपर वाले की कृपा है, एहसान है उनका. बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था, बहुत टेस्टी था. तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड पीस बी अपॉन यू ऑल.